Hello, my dear kids. This is Chetan sir. Good afternoon, everybody. So this is lecture number 12, as well as this is chapter 3, and the heading of this chapter is motion in a straight line. Okay. So, my dear kids, this physics is belonging to class 11 NCERT physics, right? And the concept is elementary concepts, right? So, and this physics is belonging to beta series. So, before proceeding, now let me डिस्कस विथ यू पीपल्स व्हाट इज एलिमेंट्री कंसेप्ट्स. ये एलिमेंट्री कंसेप्ट्स होते क्या है, ठीक है. नाउ बिफोर प्रोसीडिंग, ये एलिमेंट्री कंसेप्ट्स होते क्या है. आई विल टेक अ रोप. मैं एक बड़ा सा क्या लूंगा, रोप लूंगा. सो से फॉर एग्जांपल दिस इज रोप, ठीक है. और एल्स दिस इज अ स्टिक, बिग स्टिक, फाइन. सो दिस इज अ बिग स्टिक कैरिंग अ लेंथ L. इसका लेंथ कितना हो सकता है बच्चों? The length of the stick is capital L, है ना? Are you getting my point? So the length of the stick is capital L. Okay. So listen up. Now, let me use the different color. Okay. So I'm going to take a small width out of this length. I mean to say that a chota wala strip from this stick. कितना? इतना, इतना, इतना portion वाला छोटा वाला strip I want to take this. ठीक है. From what? From this stick. So now, is it visible to you peoples, the width of this chota wala portion of the length? Okay. So when I zoom this red color band, ये जो इसको मैंने zoom किया तो वो दिखने में कैसे दिखता है? Not black color, obviously it should be red color, है ना? इतना बड़ा दिख रहा है after zooming this छोटा वाला width portion of the length of the stick. ठीक है. So total length is L. L is equals to x बोला तो x L both are one and same. Are you getting my point, my dear kids? X and L both are one and same. So listen up. So the length of this strip, छोटा वाला strip is कितना? Small length, that is DL. DL. Now the 2 points I'm going to consider from this width. One is this point and the other one is this point. Fine. So either you can call this as L1 and this as L2, or X1 or X2. ठीक है. If L2 minus L1 will be written, so this can be written as DL. क्या है ये? DL. Or else instead of putting L2, if you write X2, and instead of putting L1, if you write X1, so this can be written as DX. This is called small strip of the total length of the stick. तो इस small strip को क्या कहते हैं? It is called as element. क्या कहते हैं? Element. So elementary concept, it means when you take out a small portion of the total length, तो छोटा length को आपने निकाल लिया. You subtracted that small length from the total length. That subtracting factor from the total length is nothing but simply it is called as differentiation. इसको क्या कहते हैं? Differentiation. Is that clear, my dear kids? Differentiation means subtracting a small element from the total length is called as differentiation. Now, if you take same width of lengths out of the total lengths, मतलब इतने ही छोटे हिस्से अगर आपने n numbers में कर दिए, so the whole stick will be going to get into small elements. छोटे छोटे elements बनेंगे, है ना? तो छोटे छोटे elements दिखने में कैसे होंगे बच्चों? वो I will show you here. So that is, यहाँ पे first मैं strip बनाऊंगा, that will be dx1. फिर इसके बाजू में और एक बनाऊंगा, इसके बाजू में ही बनाऊंगा, वो इधर नीचे दिखाऊंगा मैं, dx2. फिर उसके बाजू में ही और एक बनाऊंगा,
Okay, this is dx3 and this is dx4. Are you getting my point or not, my dear kids? क्या आपको ये चीज पता चल रही है? So what I'm trying to convey you peoples, you know, my dear kids, so the small strip is dx1, this is dx2, because सभी रेड कलर है इसीलिए साइड बाय साइड नहीं रख सकते. आई एम शोइंग जस्ट बाय कीपिंग अपार्ट. ठीक है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज dx3 एंड व्हाट इज दिस? दिस इज dx4. इज दैट ओके? या. सो लिसन अप, ऐसे कितने बनेंगे? यू कैन सी हियर द लास्ट वन इज प्रोबेबली, कौन सा होगा बताओ मुझे? लास्ट वन, लास्ट वन तो आपका, so it will be nth one, right? Yeah. So this is dx raised to n, not raised to n, x to the base n. So when you combine all the chota chota strips, you will get the total length stick. कितना वाला? कैपिटल L वाला स्टिक मिलेगा, मतलब इसका लेंथ L होगा, वरना इसका लेंथ क्या होगा? कैपिटल X होगा. Okay, so what it stands for, what it means for, it means the you are showing the length of the stick. ठीक है, either L और X, जो भी आप सिंबल यूज करो, it depends upon you. आप स्मॉल x भी यूज करो, नो इश्यू, बट स्मॉल x यूज करने से क्या होगा? इट इज सिंपली रिफ्लेक्टिंग द टोटल लेंथ ऑफ द स्टिक. एंड व्हेन यू आर यूजिंग d विद द x के साथ जब d यूज कर रहे हो, तो यू आर डिफाइनिंग द स्मॉल लेंथ, माय डियर किड्स. स्मॉल लेंथ ऑफ द व्हाट? स्मॉल लेंथ ऑफ द टोटल स्टिक. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, माय डियर किड्स? इज दैट क्लियर? या. परी जैन, रक्षिता कांबळे, वेरी गुड. सृष्टि नांदियाल, प्रियंका, nice. Aishwarya, Priyanka Rathod, Vaishnavi Mat, good. So what I'm trying to convey you peoples, you know, मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि दिस इज द zoomed portion, जूम किया हुआ पोर्शन है ये. किसका? एलिमेंट का, छोटे छोटे एलिमेंट्स का. So when you take an example of n number of boys, you used to call with the proper noun, मतलब उनका पर्टिकुलर नाम से आप बुलाते हो, चेतन, सचिन, गुरु, whatever. ठीक है, तो बहुत सारे नाम लेते हो, so you are using the proper noun. But when you take a common noun, you used to call boy, है ना? वैसे ही यहाँ पे जैसे dx1, dx2, dx3, dx4 या dxn यूज कर रहे हो, simply when you use a small element term, तो आप x के साथ d यूज करते हो. So this is used as a common term to the element, है ना? तो इस छोटे से स्ट्रिप को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, है ना? सो जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना, बिटवीन dx1 एंड dxn, तो ये क्या होता है? dxp. ठीक है, तो ये जो dxp है ना, एवरी टाइम यू कैन नॉट यूज दिस dxp. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट यू आर गोइंग टू यूज हियर, यू आर गोइंग टू यूज dx, कॉमन टर्म, छोटा वाला. तो व्हेन यू ऐड दीज, व्हेन यू ऐड दीज, इसको कैसे ऐड करोगे सर आप? इसको कैसे ऐड करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज द कॉमन टर्म. कॉमन टर्म छोटा है और कितने नंबर्स में है? इतने नंबर्स में है. ठीक है सर, आपने ये कैसे लिखा x रेज टू n? इसको हमने ऐड कर दिया, ये वाले क्वांटिटी को. अगर x रेज टू n हमको पता नहीं चल रहा है, सर व्हाई वी शुड यूज x रेज टू n? उसका रीजन बताइए, तो मैं रीजन आपको बाद में बताऊंगा. तो इंस्टेड ऑफ दैट आई विल यूज सिंपली टर्म y. तो y को मैं यूज कर रहा हूं. So with this element we are integrating the whole length, है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? This is called as integration. इसको हम क्या कहते हैं? Integration. Sir, you use the term, two new terms. आपने एक differentiation बोला, दूसरा आपने क्या बोला सर? Integration बोला. So why we are using these two new terms, sir? हमने ये दो टर्म्स को क्यों यूज करना है सर? ओके, सो ये तो चीज आपको पता चल गया बच्चों, व्हाट इज दिस बेसिकली, है ना? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू रब दिस डायग्राम. ठीक है, तो अभी क्या करते हैं बच्चों, वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन एंड व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है, इसकी नेसेसिटी क्या है?
So first of all, my dear kids, whenever we count, है ना, एक क्वांटिटी को हम काउंट करते हैं, कोई भी क्वांटिटी ले लो. क्वांटिटी क्या होती है बेसिकली? इन यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वी लर्न दैट. क्वांटिटी क्या होती है बताओ? टेल मी व्हाट इज क्वांटिटी? एनीथिंग विच इज मेजरेबल, दैट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, एनीथिंग विच इज मेजरेबल दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटी. तो क्वांटिटी को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं? क्यू से रिप्रेजेंट करता हूं. ठीक है, तो क्वांटिटी को मैं जब मैथमेटिकली लिखता हूं, I need to write n into u, where n stands for what? Numerical value, है ना? ये क्या है? Numerical value है. And what is u stands for? It is standard unit, है ना? Yes, u, standard unit. तो वो हो सकता है SI हो और CGS हो, whatever, which we can measure. Okay, very good, Parijan. Shrishtinanda, listen up, my dear kids. So this is the representation, mathematical representation of the quantity, physical quantity. Now, हमें क्या चाहिए? ये तो काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये काउंटिंग का प्रोसेस है, Q is equals to NU. लेकिन when it comes to what? When it comes to the particularly dimension wise और parametric wise measurements, हम लोग quantities को यूज करते हैं. तो उसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू सेट करते हैं और क्या करते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट को सेट करते हैं पैरामेट्रिक वाइज. बट व्हेन यू काउंट, विथ योर फिंगर्स, ऐसे उंगलियों से गिनते हो, सो यू यूज व्हाट? यू यूज नंबर्स. नंबर वाला कंसेप्ट है ना, ये नंबर क्या होता है? इट इज अ कंसेप्ट. इट इज अ कंसेप्ट वेयर यू यूज सिंबल्स. आप सिंबल्स को यूज करते हो. इन सिंबल्स को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज न्यूमेरल्स. इसको क्या कहते हैं? न्यूमेरल्स. सो यू यूज न्यूमेरल्स 1 2 3 4, and these representation of the numbers, you assign the concept with the quantities. You assign the concept with the things, है ना? वो things क्या हो सकते हैं? समझो कि ये एप्पल है ना? इट्स अ एप्पल. ओके, सो नाउ लेट मी टेल यू माय डियर किड्स, और एक एप्पल लिया मैंने, ये तीसरा एप्पल लिया मैंने, ठीक है, द फोर्थ एप्पल आई टुक. ठीक है, सो 4 एप्पल्स आई हैव टेकन. कितने एप्पल्स लिए मैंने? 4 एप्पल्स. इज दैट ओके? सो 4, 4 is what? It is representing numeral. ठीक है, एप्पल, दिस इज द थिंग. आपने कोई भी थिंग लेना है और उसके साथ न्यूमेरल को असाइन करना है. So this is assigning the symbol with the things, and that concept is called as number. इसको हम लोग नंबर कहते हैं. This is countable. चार तो आराम से गिन सकते हैं वैसे. Sir, what if 1000? उसके लिए भी आप आराम से गिन सकते हो. कैसे? Because if the things are visible to you and which is visible to your eyes considerably, अगर आपके आंखों को अच्छी तरह से दिखाई देते हैं, and the distribution has been made properly, सो उसका क्या होगा? उसको हम कहेंगे नॉन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब अगर आपने एप्पल ऐसे रखोगे, कितने रख रहे हो? ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, अप टू 10,000. ये 10,000 वाह है, ठीक है. सो दिस इज 10,000. तो आपने इस एप्पल्स को कैसे रखा है? नॉन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन किया है. नॉन कंटिन्यूअस मतलब सेपरेटली एक एक एप्पल आपको दिखते हैं. So you can easily measure the number of apples. So this is called as countable quantity. इसको क्या कहते हैं? Countable quantity, where the distribution of the quantity is in non continuous order, है ना? Continuous नहीं है, मतलब एक जैसी चीज नहीं दिख रही है. Now सर, ये अगर काउंटेबल क्वांटिटी है तो अनकाउंटेबल क्वांटिटी कौन सी है? काउंटेबल क्वांटिटी के लिए हम लोग नंबर यूज कर रहे हैं, एंड वी आर यूजिंग द मेथड ऑफ एडिशन. एडिशन जिसमें क्या हो रहा है? वी आर यूजिंग एडिंग मेथड. एडिंग मेथड को मैथमेटिक्स में और एक टर्म यूज करते हैं, सम. सम सम इज आल्सो कॉल्ड एज एडिशन. सो द प्रोसेस ऑफ एडिशन इज कॉल्ड एज समेशन. इसको क्या कहते हैं बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज समेशन. इज दैट क्लियर? क्या आपको क्लियरली ये चीज समझ में आ रही है बच्चों? Okay, so this is called as summation. Sir, what if
क्वांटिटी इज देयर एंड वी आर नॉट एबल टू काउंट द क्वांटिटी, तो उसको तो अनकाउंटेबल क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? अनकाउंटेबल क्वांटिटी। सर अनकाउंटेबल क्वांटिटी को हम लोग गिन सकते हैं क्या? और अनकाउंटेबल क्वांटिटी का एक एग्जांपल अच्छी तरह से हमको बता दीजिए, सो दैट अगर अनकाउंटेबल क्वांटिटी समझ में आती है तो अनकाउंटेबल क्वांटिटी को कैसे गिना जाता है वो प्रोसीजर हमें बता दीजिएगा, राइट? यही दिमाग में आपके क्वेश्चन होगा शायद। आई थिंक दिस क्वेश्चन मे बी इनटू योर माइंड, करेक्ट? अभी ये अनकाउंटेबल क्वांटिटी क्या है पता है? या सो लिसन अप माय डियर किड्स, एन नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटिटी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटिटी दैट विल बी कंटिन्यूअस। स्टिल यू कैन काउंट विथ योर फिंगर, कर सकते हो, बट यू विल गेट कंफ्यूज्ड, यू आर नॉट एबल टू काउंट द होल क्वांटिटी, कंफ्यूजन विल बी देयर। ओके, आई विल टेल यू हाउ। समझो ये आपका हेड है, ठीक है? ये आपका क्या है? हेड है। और ये आपका गला है, फिर ये आपका कान है ना? सर ये आपका आंख है, ये आपका नाक है, ये आपकी स्माइल है, ठीक है? नाउ लिसन अप माय डियर किड्स, कितना स्माइल है इसमें? सिंगल। कितने कान हैं? टू। कितने आईज हैं? टू। कितना गला है? सिंगल सर। कितना हेड है? वन सर। नाउ अभी इस पे क्या बनाते हैं? सो दीज आर योर हेयर्स। बहुत ज्यादा हेयर्स हैं, मान के चलो समवेयर अराउंड 10 लाख। कितने हेयर्स? 10 लाख। 10 लाख। यू विल से सर 10 लाख नहीं है सर। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा आपका दिमाग खराब करने के लिए आई विल से दैट 10,28,323 hairs are there. Now I think you believe that सर कुछ ऑड नंबर बोल रहे हैं तो शायद सर इज टेलिंग ट्रू, ओके? एंड some people think that sir don't use these gimmicks sir, we know that उतना नंबर नहीं है, ओके? इस पे नहीं है, मान के चलो दिस इज ट्रू। नाउ इमेजिन दैट इट मे बी ट्रू, ओके? इफ इट इज ट्रू, अगर ये ट्रू है, सो व्हाई यू आर सेइंग दिस इज ट्रू सर? क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या? व्हाई, क्यों और कैसे? व्हाई एंड हाउ, ओके? तो मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा ये जो फिगर है ना, आई विल टेक इट एज, आई विल टेक इट एज विथ माय क्लोज्ड आईज, y quantity. What I'm going to say? Y quantity. My dear kids, this link will be going to get cut within a 10 minutes. So you have to use the same link to rejoin. ठीक है? So this quantity is y number. ये कितना है? y है। n number terms नहीं बोल सकते प्रियंका, because you don't know that, still you are able to count this quantity, लेकिन ये कितना है पता नहीं, n है, लेकिन अगर काउंट करने बैठो तो कितना है, क्या बता सकते हो? बता सकते हैं, अनलेस अंटिल तुमने वो जो नॉन काउंटेबल मतलब नॉन कंटिन्यूअस फिगर लिया था। नॉन कंटिन्यूअस मतलब सेपरेटली दिखते थे, इसमें सेपरेटली नहीं दिखते हैं। क्या एक हेयर दूसरे हेयर के साथ जुड़ने के बाद बता सकते हो कि इज दैट सिंगल हेयर और टू हेयर और फोर हेयर्स आर टुगेदर इनटू सिंगल पॉइंट? क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? ये बाल का मैंने बता दिया, दूसरी चीज का भी बताऊंगा, ठीक है? has single on head which we can count per chain, that is exceptional case kid. सिंगल हेयर, आई थिंक नोबिता, वो नोबिता का बहुत आप सीरियल देखते हो, एक ही बाल रहता है उसके सर पे। आई डोंट नो विच दैट इज, जापानीज जापानीज यू नो जापानीज प्रोग्राम रहता है वो, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट। वन हेयर, ओके, वन हेयर काउंटेबल है, ओके? आई एम टॉकिंग अबाउट अनकाउंटेबल। मतलब हेयर जब आप बनाते हो, बाल बनाते हो, स्पेशली गर्ल्स और बॉयज वट एवर, बाल एक जैसे दिखते हैं। अगर आप देखने के बाद पता चलता है कि कितना है, मैं बोलूंगा वाई क्वांटिटी है। कितना है? वाई क्वांटिटी। तो वाई क्वांटिटी को मैं क्या करूंगा, वाई क्वांटिटी को बोलूंगा कि एक हेयर कितना है, एक हेयर डीएक्स जितना है, एंड कितने नंबर्स में है? वाई नंबर्स में है, वाई इंटू डीएक्स कर दिया मैंने। तो वाई इंटू डीएक्स कर दिया
तो y इंटू dx को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन. सो दिस इज कॉल्ड एज क्या, y इंटू dx. नाउ व्हाट इज y? y क्या है सर? y का वैल्यू ही पता नहीं हमें. सो y इज अ फंक्शन. ये क्या है? एक फंक्शन है. ठीक है, y इज अ फंक्शन. फंक्शन ऑफ व्हाट? फंक्शन ऑफ x. मतलब y की डिपेंडेंसी जो है, ठीक है, y की जो डिपेंडेंसी है वो किस पे है? फंक्शन ऑफ x पे है. मतलब इसको मैं मैथमेटिकली ऐसे लिखूंगा, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x. ठीक है. सो f ऑफ x कितना है सर? आपने तो पूरा कॉम्प्लिकेशन में डाल दिया सर. पहले तो y बोला, उसके बाद f ऑफ x बोला. ओके, सो लिसन अप माय डियर किड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग. सो लिसन अप. अगर y इज इक्वल्स टू f ऑफ x है, तो f ऑफ x कितना है सर? हाउ मच f ऑफ x? f ऑफ x कितना है? f ऑफ x इज x रेज टू 3 है प्लस 2 है. f ऑफ x कितना है? x रेज टू 3 है प्लस 2 है. मींस x इज इक्वल्स टू, से फॉर एग्जांपल 15 है. ठीक है, 15 है. x इज इक्वल्स टू कितना है? से फॉर एग्जांपल x कितना है? 15 है. मैंने ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट चुना है. I have taken the order of measurement in such a way that x cube plus 2 बोला. सर नहीं सर, मैं x cube plus 2 नहीं लूंगी. Someone will say for example Parisian, she is saying that single है. अभी उसने अपना mode of measurement change कर दिया. She said that no sir, I am going to take x square plus 5. So it is your will. The mode of measurement you are taking f of x as a x square plus 5, whereas the value of x is equals to what Parisian is choosing. She is choosing 10. So 10 को आप इसमें डालोगे 10 स्क्वायर बनेगा, मींस 100. 100 प्लस 5 कितना हुआ? 105. सो f ऑफ x कितना आया यहाँ पे? 105 आया. सो व्हेन यू आर पुटिंग 105 इनटू y, तो इसके साथ क्या आ रहा है? 100 इनटू, क्योंकि 100 कांस्टेंट आता है तो y की जगह लिखने के बाद वो बाहर आ जाता है. सो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज सिंपली, ये कितना आता है? दिस इज नथिंग बट x. x कितना है? x अकॉर्डिंग टू परिजन इज 10. सो 10 इंटू 100 कितना हुआ? 1000 हुआ. तो इस बंदे के सर पे कितने बाल हैं? इट इज नॉट 10,28,323. सो अकॉर्डिंग टू परिजन the hairs over the head of this person is 1000. Are you getting my point? And according to me, क्योंकि मैंने mode of measurement अलग लिया है, so I will take 20. ठीक है, x as 20 लूंगा मैं. ठीक है, so 20 into 20 कितना आएगा? 20 into 20 400 आ रहा है. ठीक है, into 20 करो, 800 आ रहा है. 800 plus 2. ठीक है, so f of x is 800. It's 8000. 8000. So 8002. तो 8002 आया according to my mode of measurement, whereas I have chosen the x value is 20 and the mode of measurement formula I have chosen as x cube plus 2. ठीक है, तो मोड ऑफ मेजरमेंट जो है ना, चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, जैसे परिजन ने लिया x स्क्वायर प्लस 5, जो कि वैल्यू आया 1000 हेयर्स. ठीक है, मैंने एक स्पेसिफिक क्या किया, रिसर्च के बाद ये फॉर्मूला यूज किया, x क्यूब प्लस 2 से फॉर एग्जांपल, एंड f ऑफ x कितना आया? 8002. तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इनटू dx इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? इफ इट इज कमिंग इंटीग्रेशन ऑफ 8002 into dx. ठीक है, so I'm going to take out the 8002 factor outside. So integration of dx कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? x. x मतलब कितना है? 20 है. So 20 into 8002 कितना आ रहा है? 20 into 8002. So that is 1,60,040. ठीक है, these are the number of hairs I have calculated from the person's head. क्या आपको क्लियरली समझ में आया बच्चों? Is that clear? Srushti Nandya, good. So this is how you're integrating. This is your
this is how you're counting which is having continuous distribution of the quantity. मतलब बालों का जो distribution है ना वो continuous है, मतलब उसमें बाल दिखाई नहीं देते कि सिंगल सिंगल। तो उस तरह के मेजरमेंट को हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए, काउंट करने के लिए? इंटीग्रेशन। ठीक है, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट किया पहले। तो डिफरेंशिएट कैसे किया? बाय dx, है ना। फिर बाद में बोला कि इसको y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि एक नंबर है, एंड आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट दैट। एक डिफरेंशिएट किया, फिर बाद में y के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसको इंटीग्रेट किया। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी देखा और इंटीग्रेशन भी देखा। इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? सिंपल है ना? You got my point, my dear kids? So within 2 minutes, this link will be going to get cut. Okay. Simple. Now, so listen up, my dear kids. So, आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में डिफरेंस पता चल गया। मतलब अगर कोई मैं लंबा थ्रेड लेता हूं, इसमें से छोटा सा हिस्सा काटता हूं, तो इसको मैं बोलता हूं dx। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स होते हैं इसमें? इसमें इसका समझो कि इतना नंबर है। सो विद दिस क्वांटिटी आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई विद दिस वन। ठीक है, तो एक नंबर लिया, तो उसके साथ मैंने छोटे से एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, देन इससे मिला क्या मुझे? इससे मैंने इंटीग्रेट कर दिया। छोटे छोटे एलिमेंट्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद व्हाट आई डिड द इंटीग्रेशन, आई डिड द एडिशन, which is the addition of uncountable quantities। uncountable quantities का मैंने एडिशन कर दिया। तो अनकाउंटेबल क्वांटिटीज क्या थी? इट इज द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पे रोप में छोटे छोटे एलिमेंट्स दिखते हैं कैसे? इफ यू आर मेकिंग स्मॉल एलिमेंट्स, so all are connected with each other in such a way that the whole rope looks like a distribution. Wait, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइन। तो ये जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये ऐसे कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है छोटे छोटे एलिमेंट्स का। दिस वी आर कंसिडरिंग एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, एक रोप है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। अगर हम छोटे हिस्सों में बांटे तो उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, फाइन। ओके माय डियर किड्स, दिस इज द टेबल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन, फाइन। तो ये टेबल है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन प्रोसेस का। तो डिफरेंशिएशन इज द अनदर टाइप ऑफ नेगेटिव सब्सट्रैक्शन, नेगेटिव एडिशन। मतलब जैसे आप कहते हो ना सब्सट्रैक्शन, तो उसका दूसरा मोड क्या है? डिफरेंशिएशन। इफ यू आर सब्सट्रैक्टिंग, इफ यू आर रिड्यूसिंग अ स्मॉल पोर्शन फ्रॉम द लार्जर क्वांटिटी when it is visible, when it is considerable, so that is called as subtraction. But when you are reducing a smaller portion of the quantity from the from the continuous distribution quantities, मतलब कोई क्वांटिटी है जो कि कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल 10 kg में से मैंने एक छोटा सा बिट को निकाल दिया। 10 kg of the sugar, I have taken out the single bit, or else some 10 to 12 bits. How come you are going to see the change? It is through the differentiation. Differentiation से पता चलता है. So when you are adding some this much of sugar bits together, and you are asking to count the number of bits into the sugar quantity, इतने sugar में से कितने number of bits है? It is through integration you can summate all those things. क्योंकि वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्वांटिटी है जिसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी क्वांटिटी किसके साथ जुड़ी हुई है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो? वहां पे बोल सकते हो कि शुगर का एक बिट की वैल्यू dx है और नंबर ऑफ शुगर की क्वांटिटी है वो y है।
सो y इंटू डी एक्स, उसको इंटीग्रेट किया, उसकी क्वांटिटी मिली। वो क्वांटिटी कितनी है, कुछ तो होगी z, कुछ तो होगी z, है ना। तो ये जो z लाने का जो प्रोसीजर है, तो होल प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मैंने 10 kg ऑफ शुगर लिया था, ओके, सो इट हैज n नंबर ऑफ शुगर बिट्स, छोटे 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 टुकड़े होते हैं ना शुगर्स के। सो उसमें से मैंने इतना निकाला, कितना निकाला, इतना निकाला। तो कैसे निकाला, तो मैंने निकाला कि इतने नंबर्स में निकाला, कितने नंबर्स में निकाला, y रेज टू n डिवाइडेड बाय d d n d रेज टू n x, ऐसे निकाला। वेट, मैंने उल्टा लिखा, d रेज टू n y डिवाइडेड बाय d x रेज टू n। सो व्हाट इज दिस n रिफ्लेक्टिंग, n नंबर्स, है ना, कितने नंबर्स, n नंबर्स। सो दिस इज व्हाट, अगर आपने इतना निकाला 10 kg ऑफ शुगर से इतना अमाउंट में, सो दिस इज नथिंग बट डिफरेंशिएटिंग, आपने डिफरेंशिएट किया। सो द होल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों? सो व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग विद द n नंबर्स, तो आपके पास कुछ y क्वांटिटी है, तो y क्वांटिटी जितनी आपने डिफरेंशिएट करके निकाल दिया उतना बाहर, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। ठीक है, थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में डिफिकल्ट होगा, बाय द टाइम यू विल गेट एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन कुछ बेसिक फॉर्मूलेस हैं, ओके, बेसिक फॉर्मूलाज हैं, तो उनको कैसे यूटिलाइज किया जाता है, उनको कैसे यूटिलाइज किया जाता है, वो चीजें हम लोग देख लेंगे। एंड कैसे आते हैं, डोंट आस्क अबाउट दैट, ठीक है, क्योंकि उसका कुछ प्रॉपर प्रोसीजर दिया गया है, कुछ फॉर्मूलाज का प्रॉपर प्रोसीजर नहीं दिया गया है। जो प्रॉपर प्रोसीजर कुछ फॉर्मूलाज का दिया गया है, वो बहुत ही सिंपल तरीके से दिया गया है, एंड देयर विल बी नो लॉजिक। ठीक है, एंड कुछ फॉर्मूलाज जो है, अगर उसका लॉजिक है तो वो इट इज इन थ्योरम्स, इट इज इन थ्योरम्स, तो वो थ्योरम्स के थ्रू आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड दोस थ्योरम्स विल बी यू आर गोइंग टू गेट इनटू क्लास 12 सिलेबस, क्लास 12 ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपने सही सुना, नॉट फिजिक्स, मैथमेटिक्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो, सो वी आर गोइंग टू मूव फर्दर। अभी देखो बच्चों, आई वाज टॉकिंग ऑफ y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, ये फॉर्मूला सुना था ना आपने पिछला, जब पिछले स्लाइड पे बोल रहा था मैं, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। सो व्हाट इज दिस, बेसिकली दिस इज द फंक्शन। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो y और x दोनों क्या है, दोनों क्वांटिटीज हैं बच्चों, क्या है, क्वांटिटीज। बट हियर x इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, x is independent quantity. And what about y? Y is dependent quantity. क्या है ये, डिपेंडेंट क्वांटिटी। लेकिन अगर दोनों क्वांटिटी हैं सर, दोनों क्वांटिटी हैं, सो यू ऑल नो माय डियर किड्स, क्वांटिटी को कैसे डिवाइड किया जाता है, क्वांटिटी इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है आपका कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी, एक होता है आपका वेरिएबल क्वांटिटी, है ना। क्या आपको याद है बच्चों, ये क्वांटिटी इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू कांस्टेंट क्वांटिटी और दूसरा वेरिएबल क्वांटिटी। ओके, द क्वांटिटी इफ इट इज सेड टू बी कांस्टेंट ओनली व्हेन दैट क्वांटिटी विल रिमेन सेम आफ्टर पासेज ऑफ सम टाइम। कुछ टाइम होने के बाद भी अगर वो क्वांटिटी सेम अमाउंट में रिमेन करता है, सो दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज कांस्टेंट क्वांटिटी। नाउ द क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज वेरिएबल क्वांटिटीज। ठीक है, वेरिएबल क्वांटिटीज, if the quantity is said to be variable quantity only when after passage of some time, if that quantity get changes, either it may be going to increase or it may be going to decrease, तो उस तरह के क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटी।
इज दैट क्लियर? पक्का क्लियर? इज दैट क्लियर? या वैष्णवी, प्रियंका, सना सागर, रक्षिता, गुड. Okay, fine, good. Aishwarya, Pari, good, fine. Listen up, my dear kid. So क्वांटिटी सर, अभी आपने बोला कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स सर, ठीक है? तो इसमें से आपने बोला किसको? x को इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. तो क्या ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी x जो है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सो दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. सो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है? तो फिर सर दोनों, ये तो एक इक्वेशन है सर, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. इन दोनों में हमें दोनों तरफ वेरिएबल मिला सर. क्या कांस्टेंट होते हैं इसमें? कोई इक्वेशन में कांस्टेंट होते हैं? यस माय डियर किड, कांस्टेंट इज 1. 1 इंटू एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स. तो ये क्या है? ये तो कांस्टेंट है. तो इसमें कांस्टेंट कितना है? इट इज कन्वीनियंट वैल्यू 1. whenever there is a no visible constant into the equation, so we need to consider that constant is क्या? consistent constant. वो क्या होता है? one value, ठीक है? that is always consistent. clear? ठीक है, चलो. now when you are saying sir y is equals to f of x, ठीक है, y is equals to f of x, and on the right hand side ये क्या है? tell me what is this? this is nothing but RHS, है ना? ये क्या है? LHS, ठीक है? तो x क्या है? x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. मतलब x में जैसा वेरिएशन आएगा, सिंस बोथ आर इन द न्यूमरेटर, देखो y is equals to f of x divided by 1 divided by 1, मतलब बोथ आर इन द न्यूमरेटर, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर x में इंक्रीमेंट आएगा, y में भी इंक्रीमेंट आएगा. अगर x में डिक्रीमेंट आएगा, y में भी डिक्रीमेंट आएगा. इज दैट क्लियर? तो अभी इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से इलैबोरेट करते हैं बच्चों, ठीक है? सो आई एम गोइंग टू इलैबोरेट दिस प्रॉपरली, ठीक है? सो लिसन अप. सो माय डियर किड्स, नाउ y इज अ फंक्शन ऑफ x को हमने कैसा पढ़ना है? what it is mean for? y is dependent on x. is that clear? we have decoded the function. कैसे? y is a function of x का मतलब है y is dependent on x, ठीक है? सर आपने फंक्शन ऑफ x बोला, ये फंक्शन ऑफ x क्या होता है? फंक्शन ऑफ x वैल्यू होता है बच्चों, ओके? दैट वैल्यू ऑलवेज इक्वल्स टू y. और ये वैल्यू क्या होता है सर? मैथमेटिक्स में जो भी वैल्यू रहे, फॉर एग्जाम्पल x रेज टू n बोला डिवाइडेड बाय n प्लस 1 बोला. So say for example x is equals to x raised to n divided by n plus 1, whereas x is equals to 3 and n is equals to 2, ठीक है? ऐसे ब्रैकेट में बिकॉज करके बोल दिया है उन्होंने, ठीक है? सो दिस f of x का वैल्यू कितना हो गया फिर? देन इट स्टैंड्स फॉर you need to put 3 here, है ना? you need to put 3 here instead of n you need to put 2, ठीक है? so n कितना था? 2 था, फिर प्लस 1, सो 9 डिवाइडेड बाय 3, मतलब कितना हो गया फंक्शन? फंक्शन इज 3. फंक्शन कितना है? f of x is 3. for every x is equals to 3, okay, you got f of x value is 3. f of x क्या है? f of x is y. so y का वैल्यू कितना आया? 3 आया, है ना? so you can take integration of y into dx, that is integration of 3 into dx. 3 is constant, इसको आपने बाहर निकाला, 3 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो कितना? इंटीग्रेशन ऑफ dx इज ये जो भी आता है आफ्टर d, सो यू नीड टू टेक द होल नंबर. dx मतलब क्या? पार्शियल. जब उसको आप इंटीग्रेट करते हो तो वो तो आपको x मिलता है. व्हाट इज x वैल्यू? 3 है, तो 3 इंटू x, x के बजाय आप क्या लिखना है? यू नीड टू राइट 3 हियर इंस्टेड ऑफ x.
So remove x with the 3. So 3 3s are 9. So integration of y into dx is equals to how much? 9. ठीक है ना? सिंपल है ना? बहुत सिंपल है. ओके, ये तो मैंने आपको इंटीग्रेशन एज वेल एज डिफरेंशिएशन भी बोला. लेकिन अभी कुछ क्या करेंगे? वेट माय डियर किड्स. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेल यू डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज एज वेल एज इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज. तो फंक्शन भी बोला मैंने. कंसीडर अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू f ऑफ वेयर y इज अ फंक्शन ऑफ x. ठीक है, तो ऐसे बोल के y इज इक्वल्स टू f ऑफ x लिखा है ना. तो अभी क्या करेंगे बच्चों? एक काम करेंगे, फॉर्मूलाज लिखेंगे on the differentiation side as well as integration side. 5 basic formulas of differentiation, 5 basic formulas of integration. ठीक है, चलो. तो पहला वाला फॉर्मूला इस तरफ लिखना है. ठीक है, तो that will be fine. This is the formula. Means this is nothing but differentiating x raised to n. ये x raised to n क्या है? This is the number. ये number है. What type of number? This is the number with indices. मतलब एक तरह से powered number है ना. So number will be not always not 3 4 ऐसा ही. इसको इसी को नंबर नहीं कहते हैं, इसको भी नंबर कहते हैं. ठीक है, सो कीप इट इन माइंड माय डियर किड्स. ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए. नंबर किसी तरह के भी हो सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट यू आर डूइंग हियर, इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो. मतलब इसको आप क्या कर रहे हो? द स्मॉलर पोर्शन ऑफ दिस नंबर यू आर गोइंग टू सेपरेट. इतना हिस्सा, मतलब टोटल क्वांटिटी में से इतना हिस्से को आप क्या कर रहे हो? निकाल रहे हो. कुछ टोटल क्वांटिटी है एंड यू आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? x. with respect to x. So d by dx, this is called differential. और फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव. d raised to 1 d into x raised to 1. तो ऐसे. मेरी बात समझ में आ रही है? if it is d raised to 2 d into x raised to 2, this is called as second derivative. मेरी बात आपको समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड एज सेकंड डेरिवेटिव. मैंने अगर एक स्ट्रिप लिया, मैंने तभी क्या किया था? वन स्टिक आई टुक, उसमें से छोटा हिस्सा काटा था एंड इट वाज कॉल्ड एज dx1. सो इफ आई टेक सेकंड स्ट्रिप dx2, सो दिस इज कॉल्ड एज सेकंड डेरिवेटिव. इफ यू टेक दिस मच ऑफ स्मॉलर पोर्शन, तो उसको हम क्या कहेंगे? dx2 बोलेंगे. सो सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव. गेटिंग माय पॉइंट माय डियर किड्स? अगर nth डेरिवेटिव लेते हैं तो nth वाला मिलेगा लास्ट वाला. ठीक है, ओके. सो अभी क्या करेंगे? इसको फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे? वी आर गोइंग टू राइट द फॉर्मूला. सो लिसन अप, व्हाट इज दैट? है ना. सो इट कैन बी रिटन एज n into x raised to n minus 1 into dx by dx. दिस इज द फॉर्मूला यू नीड टू बाहट. सर ये कैसे आया? ये मत पूछो. ठीक है, सो इट विल बी हैविंग थ्योरम्स. इसके लिए थ्योरम्स हैं. n into x raised to n minus 1 dx by dx, मतलब 1 रह गया यहाँ पे. so simply you can write it as n into x raised to n minus 1. सर फिर आपने इतने 3 स्टेप्स क्यों करे? यहीं पे आप कर देते. so you can make it simple, है ना. फर्स्ट वाला फॉर्मूला बन गया ऑफ द डिफरेंशिएशन. so of the differentiation, second wala formula. Okay, so what is that? So you can write as c mane constant, okay, v mane variable. So we have divided quantities into two types, है ना. तो अभी cv का प्रोडक्ट है जिसको आप क्या कर रहे हो? डिफरेंशिएट कर रहे हो. okay, so when you are differentiating this quantity, okay, when you are differentiating this quantity, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है. You have to bahut these formula. जैसे tables bahut करते हो ना, 2 1s are 2, 2 2s are 4. So first of all you need to keep constant outside. So dv by dx means you are differentiating variable, plus so you need to keep v outside, then you need to differentiate constant dc by dx. So इसको proceed करने से पहले I'm going to write the third formula. So whenever you differentiate with respect to whatever नंबर क्वांटिटी, मतलब जो भी है, x है, l है, t है, जो भी है,
लेंथ, टाइम, जो भी, मास, डी बाई डी एम, डी बाई डी टी, ऐसे भी कर सकते हो. यू कैन राइट ऐसे भी, डी बाई डी टी, डी बाई डी एम, वट एवर, डी बाई डी वाई, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी, कौन सी वाली क्वांटिटी आप ले रहे हो. ठीक है, इज दैट क्लियर? विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी यू आर टेकिंग. सो अगर ये कांस्टेंट है, सो वट एवर कांस्टेंट इन द सेंस, ये नंबर कुछ भी रहे, like 100, 2000, if you are differentiating with some quantity to the particularly constant, तो आंसर आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा. क्या मिलेगा? जीरो. सो थर्ड फॉर्मूला आपको क्या मिला? कांस्टेंट को आपने डिफरेंशिएट किया और मिला क्या? जीरो, है ना? सो अगर यहां पे मैं इसको सेकेंड स्टेप करूं, c इंटू डी वी बाय डी एक्स, सो ये क्या बन जाता है? बिकॉज ये वाला पोर्शन जीरो बन जाता है, तो जीरो इंटू वी जीरो बन जाता है. सो प्लस जीरो, क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता है. सो वेन एवर यू आर हैविंग द फॉर्मूला, अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है, क्या, लाइक यू आर राइटिंग डी बाई डी एक्स, सी इंटू वी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, सो यू शुड मेक वॉट, आपको क्या करना है? यू नीड टू मेक सी इंटू dv by dx. Is that clear, my dear kids? किसी को कोई confusion? No. Okay. So this is तीन formulas मैंने आपको बताए. So the fourth formula. So the fourth formula will be d by dx. ठीक है. E raised to x is equals to e raised to x. You know what? I think you peoples have met some a kind of things into your life, like whenever you interact with human beings, ठीक है, कुछ ना कुछ आप उनको बोलते हो, मतलब you peoples are human beings, I know that, ठीक है. So other human beings, मतलब आप भी human being हो, आप किसी और human being से भी जब बात करते हो, so you will learn many things into your life. जैसे कुछ कम्युनिकेट करना, क्वेश्चन एंड आंसर, कुछ पूछा, कुछ चीजें उनसे पूछना और कुछ चीजें उनसे समझना, and whatever you have experiences you will share with them. ठीक है. So this is all with the human beings. The complete portion of your understanding you're going to educate others with your knowledge. ठीक है, और उनके नॉलेज से आप एजुकेट कर लेते हो. ठीक है, चलो, दिस इज वन थिंग. अनदर थिंग, द कहते हैं ना, कम दिमाग किनके पास होता है? एनिमल्स के पास होता है. देयर ऑल्सो यू एजुकेट विथ योर नॉलेज टू द एनिमल्स. जैसे कोई कुत्ता आपने पाला है, तो उसको आपने नाम रख दिया टबी. टबी कम हियर, वो फट से आ जाता है. टबी सिट हियर, बैठ जाता है. बॉल फेंकते हो, टबी ब्रिंग दैट बॉल, वो बॉल लेके आता है. सो इफ इवन इफ यू टेक डिफरेंट एनिमल्स, कैट या कोई और एनिमल्स जो भी डोमेस्टिक पालते हैं, अब ये मत कहना कि मगरमच्छ. हो सकता है कि कुछ जो पालने वाले रहते हैं मगरमच्छ को पालने वाले, क्रोकोडाइल्स, those who are taking care of those crocodiles, they also teach, they also educate, वो भी कुछ सीखते हैं. okay, that is all about learning. तो आपने एक प्रॉपर मोड यूज किया आपके नॉलेज का, and you taught animals as well as human beings. okay, but when it came the dolphins, very good Rakshita Kamble. So but the thing is, when you teach a lesson, a chapter or education to the stone, to the stone, पत्थर से बात करो, क्या मिलता है बताओ मुझे? पत्थर से बात करो, बोलो सुबह से लेके शाम तक रामायण, तो राम को सीता कौन लगनी चाहिए? तो वो ये नहीं बोलता कि सर, जैसे बुद्धू होता है, व्हाट दे यूज्ड टू से, सर ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशन, बुद्धू. ओके, और इंटेलिजेंट हस्बैंड एंड वाइफ, तो वो दोनों नहीं बोलता है. इट मींस दैट पत्थर को आप कितना भी सिखाओ वो पत्थर रहता है. लाइक दैट, व्हेन यू डिफरेंशिएट, व्हेन यू यूज डिफरेंशिएशन विद द e raised to x, वो e raised to x ही रहता है. Is that clear? I think I gave the best example. I think so. I don't know. मेरा sense of humor कैसा है? Fine. Thank you. I believe that we should use our sense of humor every time. कहीं पे भी. So that will be very much easy to get understand the things. चलो अच्छी बात है वैसे अगर. Okay. So listen up, my dear kids. So d by dx.
This is the fifth formula for the trigonometric function having with a quantity sin x. ये sin क्या है? Trigonometric function with a quantity x quantity. ठीक है. So the differentiation of sin x is cos x. इसको आपको बाहर करना पड़ेगा. And the sixth formula is d by dx into the bracket cos x is equals to minus sin x. तो ये जो formulas है ना, 6 formulas into the differentiation, these are the basics into motion in a straight line. तो ये formulas आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते वक्त यूज होंगे, ओके, into the competitive exams. And whatever we are getting the formulas here, तो उसके हिसाब से ग्राफ बनते हैं, ग्राफ, ओके, फाइन. So listen up. Into the integration. First one, shall I extend this class for next 10 minutes? Next 10 minutes? Is it fine with the class? If you say yes, I will move. Okay, thank you. Vaishnavi Mat, Shrishti Nandya, Parijain, okay, Rakshita, Priyanka Rathod, Aishwarya and Saundarya, thank you. So listen up dear kids. So ये तो 6 formulas differentiation के हो गए, है ना? तो अभी इंटीग्रेशन के भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे formulas. वैभवी पवार, thank you. So with the integration we are going to see the formulas. So I was carrying integration of, मतलब ये सांप जैसा है ना, ये सांप जैसा, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल सिंबल. इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल सिंबल. ठीक है. एंड इसको ये जो है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स. ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स और डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इसको डेरिवेटिव कहते हैं. क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहने से बेहतर है we'll use different term. डेरिवेटिव जब कंप्लीट यूज करते हो उसको तब डेरिवेटिव कहते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल. क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशियल. When you use this differential with the number is called as differential element. इसको बोलते हैं differential element. टोटली dx को differential element बोलते हैं, d को differential बोलते हैं. differential, ये चीज याद रख लो आप. ठीक है. सो आई एम एजुकेटिंग यू कि क्या क्या सिंबल को क्या क्या बोला जाता है. ठीक है. फाइन. सो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इंटू dx. तो यू नीड टू सिंपली ये प्रोसेस करने के बाद यहां पे जो नंबर मिलेगा आपको आरएचएस में, x रेज टू n को क्या करोगे? पावर में +1 करोगे एंड द पावर यू आर गोइंग टू कीप इट इनटू द डिनोमिनेटर. सो दिस इज योर वैल्यू. आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर किड्स? ऐसे आपको लिखना है. इज दैट ओके? Okay, fine. So good, my dear kids, very good. Now the second formula which we are going to use with the trigonometric function having quantity sin x into dx, integration of sin x into dx. ठीक है, क्योंकि ये with respect to क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं with respect to x dx. ठीक है. तो अभी करना क्या है यहाँ पे? you need to have in the RHS that is cos x. ठीक है. So the third one, but यहाँ पे माइनस आएगा. ठीक है. इंटीग्रेशन ऑफ cos x into dx. So कैसे आया सर? देयर इज अ थ्योरम. इसके पीछे थ्योरम है. आपको वो थ्योरम क्लास 12 में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में मिलेगा. ओके. सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x into dx is equals to sin x. See here, जब आप डिफरेंशिएशन यहाँ पे cos x के साथ करते हो तो माइनस sin x मिलता है, लेकिन इंटीग्रेशन विद द sin x करते हो तो आपको माइनस cos x मिलता है. मतलब ये थोड़ा सा रिवर्स है. और यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद द sin x करते हो तो यहाँ पे प्लस cos x मिलता है, बल्कि यहाँ पे माइनस मिल रहा है. और यहाँ पे जब cos x के साथ इंटीग्रेशन करते हो तो प्लस sin x मिलता है, जो यहाँ की माइनस है. ये चीज याद रखना. ठीक है. नाउ द फोर्थ फॉर्मूला in
is integration of 1 by x into dx is equals to log to the base e into x. So you're getting RHS like this. ऐसे. So this is इंटीग्रल फॉर्मूला, इंटीग्रेशन फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला. सो ऐसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले समवेयर अराउंड 60 to 70 हैं थ्रू आउट क्लास 12 मैथमेटिक्स. वो चीजें आपको अभी से अगर करोगे, जस्ट लाइक अ टेबल बाय हार्ट, है ना, तो ये अगर करोगे मैथमेटिक्स टीचर से मिलके 60 to 70 फॉर्मूला जो भी हैं लेके, it is having a list, there is means lecturers will be having a list of these formulas, you have to by heart those things, so it will be helpful throughout PU's first year as well as second year. ठीक है. Now integration of e raised to x into dx. So इसके साथ क्या होगा बताओ अभी, समझदार को इशारा काफी होता है. e raised to x के साथ क्या होगा, क्योंकि ये पत्थर है, तो पत्थर है तो कितना भी उसको एजुकेट करो, ना आप उसको पुलिस बना सकते हो, ना उसको आप चोर बना सकते हो. सेम एज इट इज, है ना. अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर. ओके, सो दिस इज ओवर माय डियर किड्स. ओके, सो इंटीग्रेशन यूज करना किसी भी क्वांटिटी के साथ, और उसमें से छोटा एलिमेंट लेना, जैसे कि 10 kg ऑफ शुगर लिया सर, 10 kg ऑफ शुगर लिया, और मैंने बोला कि इसके अंदर कितना है, इसके अंदर एक शुगर के बिट का वैल्यू dx है, 1 बिट ऑफ शुगर. ठीक है, 1 बिट ऑफ शुगर इज dx. तो कितने बिट्स हैं, y बिट्स हैं. तो सारों को मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि सभी मिलके हैं, विच इज नॉट काउंटेबल इजीली, सो इट इज अ अनकाउंटेबल क्वांटिटी. तो उसमें जो शुगर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है. तो इसके लिए मैंने कौन सा प्रोसेस यूज किया, सभी चीजों को एडिशन करने के लिए आई यूज्ड अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, है ना. तो अगर सर एप्पल्स हैं, एप्पल्स हैं और सभी एक गोडाउन में रखे हैं, गोडाउन, ठीक है, गोडाउन में रखे हैं, तो इट इज से फॉर एग्जांपल 20,000 नंबर्स में है. ठीक है, 20,000 नंबर्स में है. तो इसको हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे. कैसे करेंगे सर, n इज इक्वल्स टू 0 से लेके 20,000. तो इसको क्या बोलते हैं, ये सिंबल को, किसी को याद है विच सिंबल दिस इज, दिस इज कॉल्ड एज summation. The symbol is sigma, capital letter, है ना, capital letter sigma of Greek alphabet, है ना, Greek alphabet. तो जब हम n is equals to 0 से 20,000 तक गिनते हैं, these are discrete values, लेकिन this is नॉन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. ये क्या है, नॉन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हम इजीली इसको काउंट कर सकते हैं. तो इसीलिए नॉन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को हम समेशन यूज करते हैं, और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं. क्लियर हो गया. अभी क्या करना है बच्चों, वी नीड टू मेक, ओके, वी नीड टू मेक, यू नो व्हाट, यस सर इट्स फुल्ली क्लियर. चलो अच्छी बात है यार. हाँ, अभी एक बात बताता हूं मैं. आई यूज अ ग्राफ फॉर द डिफरेंशिएशन. मैं डिफरेंशिएशन के लिए ग्राफ यूज कर रहा हूं, ठीक है, ग्राफ. आउट ऑफ दिस ग्राफ आई एम यूजिंग अ क्वांटिटी. ठीक है, मैं एक क्वांटिटी को यूज कर रहा हूं. ठीक है, सो ओवर द y एक्सिस, y इज डिफाइनिंग द सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ द क्वांटिटी, एंड x इज डिफाइनिंग द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द क्वांटिटी, है ना. दो डायमेंशंस है, ये एक डायमेंशन रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये एक डायमेंशन रिफ्लेक्ट कर रहा है. So now what I'm doing here, I am taking a point from the curve over the x as a interception. Interception of the first point over the x is taken as what, is taken as the first value. ठीक है, पहला वैल्यू लिया मैंने, तो वो वैल्यू क्या है,
x1 वैल्यू ऑफ x है, क्या है, x1 वैल्यू ऑफ x है. So second value I am choosing, second value I am choosing, and I'm intercepting that second point value over the x as a x2. तो मैंने x2 वैल्यू को चूज करा. Okay, so with respect to x, what I'm going to do here is I'm going to make two interception over the y values over the y axis. ठीक है, तो वो क्या है, एक आपका y1 मिलेगा, दूसरा आपका y2 मिलेगा. ठीक है, तो अगर ये दोनों मिल रहे हैं, so this is nothing but y2 minus y1 है. Am I right, my dear kids? These are nothing but these 2 points are reflecting y2 minus y1. So this is nothing but delta y. Okay, and if I'm taking this horizontal change, it can be taken as x2 minus x1, and this is nothing but delta x. Yeah, so is that clear? Now if you take a slope, अगर आप slope लेते हो, slope होता क्या है, see here my dear kids. So whenever you are carrying 2 points, दो nearest points ले रहे हो, which you are thinking that these are nearest values, मतलब consecutive values हैं. समझो कि आपने 6 values लिए हैं. This is first value, second value, third value, fourth value, fifth, sixth. ठीक है, 6 कहीं पे आउट ऑफ द ग्राफ गया है, यहाँ पे फिफ्थ भी आउट ऑफ द ग्राफ गया है. बट यू नो 2 3 एक ही लाइन में नहीं आ रहे हैं, बट these two are coming into the same line. So what I'm going to do, मैं यहाँ पे एक स्लोप बना रहा हूँ. How you know, एक काम करूंगा मैं, I'm going to take at the single point, यहाँ से मैं एक टेंजेंट बनाऊंगा, जिससे क्या होगा, टेंजेंट बनाने से this I'll form a slope. Slope कैसे, slope is nothing but the ratio of y by x, या the proportion of y by x, और proportion of y by x, इसको हम क्या बोलते हैं, proportion of y by x is nothing but slope, इसी को हम slope बोलते हैं. तो यहाँ पे y क्या है, देखो यहाँ पे I'll make this as point A, this as point B, and this as point C. तो AB y की जगह क्या है, y की जगह AB है, and x की जगह क्या है, BC है. So AB by BC is nothing but slope. So slope क्या बता रहा है, slope is showing that there is a change into the quantity. That smallest change is called as differentiation. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं. और उसी डिफरेंशिएशन को जब हम मैथमेटिकल टर्म्स में लिखते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स में उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं. ठीक है, जब आप ओके, आई वाज डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो मैं डिफरेंशिएशन के बारे में आपको बोल रहा था. ठीक है, सो आई वाज यूजिंग द ग्राफ, है ना, तो मैं ग्राफ यूज कर रहा था, और ग्राफ में क्या बोल रहा था, आई वाज यूजिंग x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस. ठीक है, सो विद दिस मैंने एक कर्व को यूज किया. तो कर्व के यूज करने के बाद आई टुक 2 इंटरसेप्शन ओवर द x एक्सिस. ठीक है, तो जब मैंने दो इंटरसेप्शन लिए x एक्सिस पे, with respect to that same interception I took with respect to those 2 points along the y axis, तो मैंने उसके respectively y axis पे लिए. ठीक है, so listen up my dear kids, this is x1 and this is x2, this is y1 and this is y2. So this is a delta y and this is delta x. Now let me tell you one thing my dear kids, ये तो क्या है, हम जब भी एक पॉइंट को डिफाइन करना चाहते हैं over the x axis, that point is called as the value of x as a x1. With respect to that हम y1 value y axis पे लेते हैं. So when we take 2 points, ये चीजें मिलती हैं. So when we are taking a slope, तो slope लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, we need to have a tangent. तो एक tangent बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से क्या बनेगा, slope बनेगा. तो slope बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
इसका एक्सटेंशन करेंगे। तो एक्सटेंशन करने के बाद व्हाट वी गेट द 3 पॉइंट्स। ठीक है, वो पॉइंट्स क्या होते हैं? ए बी सी। सो दिस कैन बी रिटन एज ए बी बाय बी सी। ठीक है, सो द वे ऑफ राइटिंग द स्लोप is nothing but writing the proportion of y-axis as well as x-axis. Means if there is a change in delta y to the delta x, so this is nothing but slope. इसको हम slope कहते हैं। ठीक है, so my dear kids, change in y with respect to change in x is nothing but slope. तो अभी मैं इसको अगर पॉइंट के हिसाब से बनाऊं, अगर पॉइंट के हिसाब से बनाने से पहले से फॉर एग्जांपल y और x जब हम ले रहे हैं, वी आर नॉट गेटिंग दैट कि y क्या है और x क्या है। नाउ आई विल टेक y एज अ डिस्टेंस, y एक्सिस एज अ डिस्टेंस। ये क्या है? क्वांटिटी, डिस्टेंस क्वांटिटी है। एंड x एज अ टाइम क्वांटिटी। क्या है अभी? x टाइम है। सर हम डिस्टेंस का सिंबल x लेते हैं सर, एंड हियर वी आर टेकिंग द y symbol as a distance quantities symbol. समझ में आ रहा है? We are flexible to choose our symbols, है ना? तो अब हम क्या कर रहे हैं? We are writing out dy by dt. What is this dy by dt? Tell me. Is it reflecting instantaneous velocity या instantaneous speed? याद करो बच्चों कुछ पिछले वाले क्लास में। या नाउ अगर देखो ये ऐसा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 वेयर डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, है ना? दिस इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी टी। क्या मेरी बात आपको याद आ रही है बच्चों? इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बस एक्स के बजाय मैंने वाई को यूज किया है। ओके, यू पीपल्स हैव रिमेंबर्ड दैट, राइट? परिचय कुछ दिमाग में आया? So instantaneous speed can be written like this as well as like this. हाँ सर, चलो अच्छी बात है। So what I'm writing here, instead of x1 अगर मैं t1 लिखूं तो instead of x2 if I write t2, so what I'm getting, t2 minus t1 is nothing but delta t. So this delta t is nothing but the value of time which is tending to 0. Tending to 0 not equals to 0. Tending to 0 क्या होता है? Approx value of time होता है। Approx value of time is nearly equals to 0. Approx zero value, approx zero value मतलब ये जीरो क्या हो सकता है? ये जीरो हो सकता है 0.00 ऐसा हो सकता है। मतलब when you make round off you will get 0. ये जो है ना किस तरह का जीरो है? इस तरह का जीरो है। ठीक है, t tends to 0. what is this? ये क्या है? t is equals to 0. this is exactly 0. मतलब ऐसा कुछ वैल्यू नहीं है ये। So there is a lot of difference between t tends to 0, t is equals to 0. ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों क्वांटिटीज में। ठीक है, सो व्हेन यू राइट लाइक दिस इट मींस दैट छोटा सा वैल्यू ऑफ टाइम, स्मॉल वैल्यू ऑफ टाइम, with respect to this small value of time there is a small covering of the distance. तो डेल्टा y मिल गया। सो डेल्टा y by डेल्टा t in the limit of delta t tends to 0. तो छोटा सा हमको क्या मिल गया? छोटा सा वेलोसिटी मिल गया at that instant. कौन से वाले इंस्टेंट पे? ये वाले इंस्टेंट पे, है ना? तो ये वाले इंस्टेंट पे अगर मिल रहा है तो उस क्वांटिटी को हम कह रहे हैं dy by dt, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? एनी कंफ्यूजन ओवर दिस? तो हमने क्या करा इसमें? हमने एक प्रोसेस यूज करा जिसमें, या वेरी गुड, we used a process where we found the derivative. डेरिवेटिव हमने फाइंड करा। वो डेरिवेटिव क्या है? वो डेरिवेटिव ये है। ठीक है, तो अगर हमने एक प्रोसेस यूज करके डेरिवेटिव को फाइंड करा, क्या पहले हमने क्या यूज किया? पहले हमने एक ग्राफ को यूज किया। वो ग्राफ क्या था? एक्स और वाई का प्लॉट था। एक्स और वाई का प्लॉट था जिसमें हमने एक कर्व को यूज किया, जिसमें एक स्लोप बनाया। स्लोप बनाने के बाद उससे हमें क्या मिला? वी गॉट अ इक्वेशन। ठीक है, उस इक्वेशन से हमने क्या किया? हमने डेरिवेटिव को बनाया, वो भी dy by dt, and the whole process of doing this thing is called as what? Differentiation. इसको हमने क्या बोला?
डिफरेंशिएशन बोला। क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आई? पहले मैंने आपको इंटीग्रेशन समझाया, अभी मैंने आपको डिफरेंशिएशन समझाया। क्लियर? या ओके, सो the method of differentiation is used to find out the instantaneous values with respect to क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए, कहां पे? यहां पे लिए, x1 और x2। उसके हिसाब से क्या वैल्यूज मिले? यहां पे मिले y1 और y2, है ना। जब भी हमने x1 और x2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को यूज किया, तब हमको डिपेंडेंट वेरिएबल्स मिले। मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करके ग्राफ के मतलब प्लॉट के अंदर ग्राफ डाला, उस ग्राफ से क्या बनाया? ये ग्राफ ये था हमारा, उससे हमने स्लोप बनाया, स्लोप से हमने क्या बनाया? ये इक्वेशन बनाया, इस इक्वेशन से क्या बनाया? डेरिवेटिव फाइंड करा। तो होल प्रोसेस को हमने क्या बोला? हमने बोला डिफरेंशिएशन। इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? हमने क्या बोला? डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो। सो माय डियर किड्स, द डिफरेंशिएशन इज ओवर। ठीक है, तो हमने dx बाय dt बोला, या dy बाय dt बोला, या ds बाय dt बोला। s y x क्या थे? डिस्टेंस कवरिंग थे। तो इससे हमें क्या मिला? स्पीड मिला, इंस्टेंटेनियस स्पीड मिला। ठीक है, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो भी है। अगर डायरेक्शन है तो वेलोसिटी, अगर डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं सर? इंटीग्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से आपको प्लॉट लेना पड़ेगा। कौन सा? Na वाला प्लॉट? नो माय डियर किड्स, आपको प्लॉट लेना पड़ेगा x वर्सेस y का। ठीक है, x वर्सेस y का आपने प्लॉट लिया, उसमें से आपने कर्व को पुट कर दिया। तो कर्व को पुट करने के बाद व्हाट यू डिड हियर? यू डिड यू नो टू इंटरसेप्शन किए आपने। कितने? टू इंटरसेप्शन, जिसमें एक आपका x एक्सिस है, दूसरा y एक्सिस है। सो एक पॉइंट को आपने a लिया, तो दूसरे पॉइंट को b लिया, फिर तीसरे पॉइंट को c लिया, तो फोर्थ पॉइंट को d लिया। सो व्हाट दिस abcd इज सेइंग? एरिया अंडर ग्राफ, है ना, एरिया अंडर ग्राफ। तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ या तो कर्व होता है या तो लीनियर कर्व होता है ना। तो सी हियर माय डियर किड्स, अभी ये जो एरिया है, इसको डिफाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा पता है? ये टोटल एरिया क्या है? टोटल एरिया जब आप यहां पे इंटरसेप्ट करोगे, यू विल कम टू नो दैट कि सर ये y है सर, है ना, ये क्या है? y है। लेकिन इसमें y के लिए मैं क्या करूंगा? फॉर एवरी y आई नीड टू मेक अ स्मॉल एलिमेंट। आपको छोटा सा एलिमेंट बनाना पड़ेगा। कैसे? ऐसे। अगर ये छोटा एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को मैं ऐसे दर्शा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, सो दिस एलिमेंट कैन बी रिटन एज dx। ये क्या है? द विड्थ ऑफ द एलिमेंट इज dx सिंस इट इज अलोंग द x एक्सिस। तो ये वाला क्वांटिटी, कौन सा वाला? ये वाला क्वांटिटी इसके साथ मल्टीप्लाई करा, तो इसको क्या बोला मैंने? y बोला। अगर ये पहला एलिमेंट है तो पहला एलिमेंट के लिए आप कैसे लिखोगे? dx1। तो फिर ये हाइट के लिए क्या बोलेंगे सर? ये हाइट के लिए y1 बोलेंगे। सो दिस इज y1। so y1 into dx1, so this is integration, what we are getting sir? We are getting what? जो भी फंक्शन आएगा उसके हिसाब से हमें वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, है ना। say for example I am taking the nth one, which one? nth one, nth वाला एलिमेंट लूंगा। तो nth वाले एलिमेंट को, छोटा सा जो है एलिमेंट, इसको कैसे लिखूंगा? dxn। तो फिर ये जो हाइट आएगा सर, इसको क्या बोलेंगे? y to the base n। so y to the base n into dxn, so this is integration of this quantity। तो इस प्रोसेस के बाद जो वैल्यू मिलता है, जो भी मिलता है, समझो कि हमको m मिल गया, m वैल्यू। ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस, सो होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्या? इंटीग्रेशन। इसको क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? एनी कंफ्यूजन ओवर दिस? ये जो dx है ना बच्चों, ये d, अभी dx1 ये क्या है? समझो दिस इज परी, dx2 दिस इज सृष्टि। ठीक है, dx3 दिस इज वैष्णवी।
Okay, dx4, this is Rakshita. So all are different persons with their name, but commonly all are what? They are girls. dx, है ना? तो मैंने 1 2 3 कुछ भी नहीं यूज किया नाम, मैंने बोला सिर्फ कॉमनली गर्ल्स. अगर इन गर्ल्स को यहाँ पे जितने भी वाइज मिल रहे हैं, कितने वाइज मिल रहे हैं? y1 से लेके yn तक, तो ये सारे क्या हैं? सारे y हैं. तो सारे y को मैंने dx के साथ यूज करा और उसको क्या करा? मैंने इंटीग्रेट किया. सिंस दिस dx इज टेंडिंग टू 0, अगर छोटे से मतलब ये जो dx है, इफ इट इज टेंडिंग टू 0 मींस दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0. मतलब छोटे से x के वैल्यू पे हमें क्या मिल रहा है? जब y टाइम से मल्टीप्लाई करने के बाद एक इंटीग्रल वैल्यू मिल रहा है, जो हम एक इंटीग्रल सिंबल से यूज करके इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो होल प्रोसेस वॉट एवर वी आर गेटिंग इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन, है ना? तो वो क्या मिला? x मिला, क्योंकि मैंने y इंटू डी एक्स करा. समझो कि y कोई कांस्टेंट है, मान के चलो y is taken outside and if it is integration of dx, if this is constant, अगर ये constant रहा तो so this will be y into x. ठीक है, क्या मिला हमको? y into x. तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको हमने बोला इंटीग्रेशन. क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? चलो, वेरी गुड. ओके, सो न्यूमेरिकल, इसके साथ मैं वीडियो जोड़ दूं या न्यूमेरिकल बोल दूं? वीडियो जोड़ दूं या न्यूमेरिकल बोल दूं अभी ही? Shall I explain it now? Be frank here. Now, चलो, सिंगल न्यूमेरिकल, बिकॉज मुझे अलग से वीडियो जोड़ना पड़ेगा. ओके, फाइन. सिंगल न्यूमेरिकल आई एम गोइंग टू हैव. आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर मोर टाइम. ठीक है, चलो, वेरी गुड. गर्ल्स आर वेरी इंटरेस्टिंग because they don't get bored with the subject. Obedient girls are always obedient kids. Numericals, अभी पता नहीं बॉयज कितना मेरे पे चिल्लाएंगे ये वीडियो देखने के बाद, ओबीडियंट बोलने के बाद. सर आप लोग हमको ओबीडियंट बोलते ही नहीं. बट आई डोंट नो, बॉयज दे डू टेक इंटरेस्ट सो मच इन माय क्लास. आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं. एट 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 किलोमीटर, ठीक है, एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट 2 किलोमीटर. ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द चलो यार पूरा स्पेलिंग लिख देते हैं, इतना सब लिख रहे हैं. एवरेज स्पीड ऑफ द कार. सो व्हाट वी आर फाइंडिंग हियर माय डियर किड्स, बताओ मुझे फट से, क्या हम लोग एवरेज स्पीड फाइंड कर रहे हैं? इज दैट ट्रू? सो आई एम ट्रैवलिंग हियर. ठीक है, मैंने ट्रैवल करा इतना, तो वो ट्रैवल जो है बच्चों कितने किलोमीटर का है? 4 किलोमीटर का. तो मैंने दो हिस्सों में उसको बांट दिया. ठीक है, तो वो दो हिस्सों में कैसे बांटा? 2 किलोमीटर का डिस्टेंस में बांटा मैंने, है ना? तो ये 2 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर. इज दैट ट्रू? आपका जो पहला वाला डिस्टेंस है वो कितना है? x1 है, और दूसरा वाला डिस्टेंस कितना है? x2 है. तो दोनों के दोनों 2 किलोमीटर है. और जो पहला वाला स्पीड था वो था 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और दूसरा वाला स्पीड था वो कितना था? 40 किलोमीटर पर आवर, है ना? तो अभी हमने क्या करना है? हमने एवरेज स्पीड को फाइंड करना है, राइट? ओके, सो टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है ना, ये कैसे आता है मैं आपको कल बताऊंगा बच्चों. यू नीड टू मेक इट कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ऐसे ही कैसे आता है सर, इतना ही कैसे आता है, ये आपको फाइंड करना है एज अ होमवर्क. ठीक है, अगर आपको नहीं आएगा मैं बता दूंगा. ठीक है, बट यू नीड टू बाहर दिस फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल. अभी आपको बाहर करना पड़ेगा x1 प्लस x2. ठीक है, देन v1 इंटू v2. ठीक है, डिवाइडेड बाय x1 इंटू v2 प्लस x2 इंटू v1.
ठीक है, ये आपको फॉर्मूला आपको पक्का बाहर करना पड़ेगा, कल मैं बताऊंगा कि ये कैसे आता है। ठीक, सो x1 कितना है बताओ फट से, 2, और x2 कितना है बताओ, 2, v1 कितना है बताओ, 60 इंटू 40, ठीक है, और यहाँ पे x1 कितना है 2, v2 कितना है 40, फिर 2 इंटू 60। सो लिसन अप माय डियर किड्स, 4 इंटू 2400, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे कितना आएगा 80 प्लस 120, 80 प्लस 120 200 आएगा, ठीक है। चलो 2000, फिर बाद में 1600, ओके 9600 डिवाइडेड बाय 200, तो दोनों जीरो कैंसिल होते हैं, 2 वन आएगा 48 जा, तो कितना आ रहा है बताओ बच्चों, एवरेज स्पीड of the car is equals to 48 kilometer per hour. Is that okay, my dear kids? So how you felt about the class, today's class, my dear kids? Do everyone got this? Interesting. Okay, very fine. So if you felt very much happy with this class, you can comment into my YouTube channel at this video, particular this video. Okay, if you like this, please do share, as well as ask your other college friends to subscribe my channel. And I think you peoples have got your friends at the different colleges like Shanti Niketan, Excellent, Tungar, and Darbar, PDJ, St. Joseph. Wherever your friends are there, please do share this link with other college friends, as well as even if if your friends are staying out of the district, out of the state. Okay. Thanks for listening patiently, my dear kids. Thank you so much. Bye bye. Okay. Jai Hind.